Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs from 22nd Feb to 25th Feb. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ important current affairs ਹੈ, ਚਾਹੇ prelims ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ mains, ਚਾਹੇ interview stage, ਜੋ ਵੀ important topics ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ exam 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ discussion 'ਚ cover ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ. ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ. ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ. ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਣਾ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਮਾਰਕਸ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਟੋਪ ਰੈਂਕ ਆਲਸੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਪੈਕੇਜ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਫॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि तुसी हुनी तो स्टार्ट करो. इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ, बैकवर्ड्स चलते रहो. जनवरी तो शुरू करके दिसंबर, नवंबर, इस तरीके नाल यू कैन कवर ऑल द करंट अफेयर मैगजीन्स. ठीक है, सो अज दे टॉपिक्स देख लेने. काफ़ी सारे टॉपिक्स है जिहड़े अज आपां डिस्कस करने हैं. राइट, सो थोड़ा क्विकली स्टार्ट करते हाँ. राइट, these are the 10 topics that we will be discussing. Mix of prelims and mains topics ਆਪਾਂ cover ਕਰਾਂਗੇ. all are very important. ਅੱਜ ਦੇ topics ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, prelims ਤੇ mains ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਈ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੰਪ ਇਨ ਟੂ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਟॉपिक ਕਰਦੇ हैं. नीति आयोग रिलीज्ड नीति आयोग ने ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर ते इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है. 2023 दे एंड दे अराउंड एक रिपोर्ट आई सी. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है पंजाब PCS दे. अगर तुसी PYQs देखे है ऑलरेडी, पंजाब PCS ने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन ते सवाल पूछ लिया है. ठीक है, ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ते. प्रीलिम्स च सवाल आया सी. इफ़ यू वॉन्ट टू चैक, ਤੁਸੀਂ PYQs ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.siddhipunjab.com. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ PYQs ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦ ਫਾइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट्स, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस रिपोर्ट्स इन योर आंसर. ठीक है, सो ये क्या कह रहा है नीति आयोग ऑफ द रिपोर्ट विच. सो पहली गल, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन हुंदा क्या है. तुसीं देखो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ. ਰਾਈਟ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਜ਼ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਵਹੀਕੂਲਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ. ਵਹੀਕੂਲਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਿਸ, ਟਰੱਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੇ ਆਰ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਔਰ ਇਨ ਦੀ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. राइट, सो इसे ਲਈ इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द फार्मर स्टबल बर्निंग ते या छोटे मोटे बिजनेसिस नू ओप्रैस करन ते कुछ होना नहीं है. सारे नालों बड़ा कारण साडा वन ऑफ द बिगेस्ट कारण इज़ वहीकुलर पॉल्यूशन. सो इसीलिए गवर्नमेंट देखो इनू रिकगनाइज तो कर ही रही है कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग कल्परेट इन दी प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ पॉल्यूशन. तो उसनू ही चेंज करने लई डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का कॉन्सैप्ट बनया है. ठीक है, बेसिकली तुसी ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर नू थोड़ा ईको फ्रेंडली बनाना चाहते हो, या तुसी कह सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन घट होवे, इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन अपनाना चाहते हो. कार्बन रिलेटेड तुसी कह सकते हो एमिशंस जिहड़ियां है उन्होंने कंट्रोल कर सको. ठीक है, सो कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर चुकी है. यू हैव सीन द आइडिया ऑफ CNG व्हीकल्स. राइट, जेडे लोग चंडीगढ़ च रहिंदे है, मे बी इन अदर सिटीज़ ऑल्सो यू विल सी ग्रीन बसिस होंदियां है, उन्हां ते फेम स्कीम, फेम भी नाम लिखा होंदा है. दैट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इलैक्ट्रिक ऑफ प्रमोटिंग E व्हीकल्स.
ठीक है। सो गवर्नमेंट ई वहीकल्स भी प्रमोट कर रही है, इलैक्ट्रिक वहीकल्स, हाइब्रिड वहीकल्स की टेक्नोलॉजी भी आजकल आ रही है, राइट। BS नॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट ने, भारत स्टेज नॉर्म्स अगर तुसी सुनिया हो दिल्ली च चलता है, ऑड इवन फॉर्मूला, ये सब टैंपररी सोल्यूशंस भी चलते हैं, राइट। सो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन करन लई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशंस गवर्नमेंट ने काफ़ी लिते हुए ने, राइट। बट अगे चल के होर यह जे स्टैप्स, यह जे मैजर्स लैन की जरूरत है, एक कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी चाहिए अगे वधन लई, इस लई नीति आयोग ने यह रिपोर्ट दी है, राइट। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट, ठीक है। ये दी हैडिंग है रिपोर्ट दी, टूवर्ड्स डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। इन्हू याद रखना है जो G20 समिट हो रहा सी 2023 उदों ये रिलीज़ की गई सी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन, याद कर सकते हो, कई बार मेन्स च क्वेश्चन आ जाता है, सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। नाउ स्टेटस ऑफ मिशन, करंट स्टेट ऑफ मिशन क्या है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो देखते हैं। देखो रिपोर्ट कह रही है कि अगर तुसी 2021 का डाटा देखो, राइट, सो जो ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर है ओदा कॉन्ट्रीब्यूशन 14 to 15% सी इन द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑफ द कंट्री, राइट। जिन्नियां भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कीतियां हैं उस चो 15% तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर चो ही आ रही है, एंड दैन यू ब्लेम दी अदर सैक्टर्स फॉर पोल्यूशन। दिस इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन। जिन्नी पॉपूलेशन बढ़ती जा रही है तुसी देखो उन्ने ही वहीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं एवरीवेयर। इफ यू आर लिविंग इन दीज सिटीज़ लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, यू नो रेंटिंग का इन्ना फिनोमिना है, तुसी देखोगे एक घर दे विच अगर 3 पोर्शनस ते लोग रह रहे हैं तो हर पोर्शन दियाँ 2-2 या 3-3 कारां जरूर होंदियां हैं। सो हर घर दियाँ 9 तो 10 कारां बाहर खड़ियां होंदियां हैं, ठीक है। ज़्यादा हायर नंबर तो हो गया बट एटलीस्ट 4 तो 5 कारां हर घर नाल जरूर बिलोंग कर रही होंदियां हैं। इसीलिए वहीकुलर पॉल्यूशन मतलब वही दसदा है कि वहीकुलर डेंसिटी बढ़ती जा रही है कंट्री दी, एंड दैट मीनस पॉल्यूशन लैवल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो 14 to 15% एमिशंस इत्थों ही आ रही ने, राइट। अगर ओवरऑल तुसी गल करो ट्रांसपोर्ट सैक्टर च बहुत कुछ आंदा है, जिमें कि रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, राइट। सब तो ज़्यादा पॉल्यूटिंग केड़ा हुंदा है, रोडवेज इज़ द मोस्ट पॉल्यूटिंग या मोस्ट एमिटिंग एमिशन इंटेंसिव एरिया। 90% एमिशंस जड़ियाँ है रोड ट्रांसपोर्टेशन तो आंदियां है, यानी कि जड़ियाँ तुसी गड्डियां ते जाना पसंद करते हो, गेड़ियाँ लाना पसंद करते हो, दैट इज़ नॉट वेरी इको फ्रेंडली एक्सरसाइज, राइट। साइकिल ते लाओ जिन्नियां गेड़ियाँ लानियां है, राइट। सो दैट इज़ वॉट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल फॉर आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ये रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। बाकी इंडिया का हुण टारगेट है ही नैट जीरो बनन दा, एमिशंस इंडिया ने पूरियां खत्म कर देनिया 2070 तक, ये इंडिया का इंटरनेशनल लैवल पर टारगेट है। लेट्स सी हाउ इंडिया अचीव्स इट, ओदे लई ही आपां ये रिपोर्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। नाउ हुण रिपोर्ट अगे क्या कह रही है, इंडिया की अगर तुसी प्रैपरेशन की गल करो ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर च हजे तक साडे कोई टारगेट्स नहीं है कि असी इन्ना एमिशंस कम करनियां है, इन्ना टारगेट अचीव करना है, यह जा कोई भी टारगेट हजे तक इंडिया का ओवरऑल नहीं है, राइट। स्टिल ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर जिहड़ा है एदियां एमिशंस जिहड़ियां है आंदे वाले सालों विच होर भी इनक्रीज हो सकदियां है। इट इज़ एस्टिमेटेड कि 2030 तक जिहड़ी एमिशंस है वो 65% वध जान, ठीक है। हुण अगर 100 यूनिट समझ लो आप एमिशंस क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर दे, तो ये वध के 165 ते पहुँच जाएगा। एंड अगर तुसी 2050 की गल करो तो ऑलमोस्ट 200% इनक्रीज तुसी इस देखोगे, राइट। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, राइट। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है पहली गल तो इंडिया टारगेट सैट करे, जिवें हुण असी फॉसिल फ्यूल बर्निंग का टारगेट सैट किया है कि असी लेट्स से X% तो घटावांगे, इस तरीके नाल ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर वाल भी वो डेडिकेटेड टारगेट सैटिंग रिक्वायर्ड है, राइट। सो इसे लिए हुण रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशंस कीतियां है, ये 2-4 रिकमेंडेशंस याद करने की कोशिश करो, आपके आंसर्स च लिख सकते हो या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट है कि 2 चीज़ां ते फोकस करना है, द रिपोर्ट सेज कि 2 चीज़ां ते फोकस करना है। फर्स्ट है मोबिलिटी ट्रांजिशन, सेकंड है एनर्जी ट्रांजिशन, राइट। मोबिलिटी ट्रांजिशन का क्या मतलब है, यानी कि जिमें कि जड़िया अमिटिंग एरियाज ने, जिमें कि रोड सारे नाल ज़्यादा पॉल्यूटिंग एरिया है, सो यू शुड शिफ्ट फ्रॉम
रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिमें कि रेलवेज बहुत एफिशिएंट होता है, वाटरवेज ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ एफिशिएंट या आप कह सकते हैं इको फ्रेंडली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट एयरवेज रोडवेज ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग ने। उस तो बाद अगर तुसी साइकिल्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय, अगर तुहाडा घर बहुत ही नज़दीक है यू कैन गो बाय वॉक, राइट। वाई टू यूज़ अ कार इफ़ योर हाउस इज़ वेरी क्लोज बाय योर वर्क प्लेस, right? Or you can use a bicycle, or you can use public transportation. So instead of using such means ਜਿਹੜੇ ਕਿ pollution ਨੂੰ बढ़ाਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ mobility ways ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। That is what they are saying, mobility transition. Let's say road to railways या private cars to buses। इस तरीके की फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन इंडिया ਨੂੰ पुश करनी पएगी। ਇਹ गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों 'ਚ अवेयरनेस क्रिएट करे या फिर लोगों ਨੂੰ एनकरेज करे टू अडॉप्ट सच ट्रांजिशन, ठीक है। सब तो पहला ये करना है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन, हुण देखो सब तो ज़्यादा आप पेट्रोल डीजल वगैरह पर डिपेंडेंट है, ठीक है। मजोरिटी साडी ट्रांसपोर्टेशन जी है पेट्रोल डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी ते काम करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस नूं भी ट्रांजिशन करिए, जिमें कि ई वहीकल्स ते असी गए, नैचुरल गैस CNG वहीकल्स ते जाइए, हाइब्रिड्स ते जाइए, तो यह सैकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन चाहिए है, ठीक है। ये कीवर्ड्स ने प्लीज़ दोनों याद रखो, आंसर्स च लिख के आओ, एसेस च लिख के आओ। ऐसे जो वर्ड्स जब लिखते हो ना तद एग्जामिनर को पता चलता है कि तुसी कुछ एडुकेटेड बंदे हो, तुसी इस एरिया की स्पैसिफिक कुछ स्टडी की है, इस टॉपिक की कुछ स्पैसिफिक स्टडी की है। डू नॉट जस्ट सिंपली राइट दैट वी शुड मूव अवे फ्रॉम रोड्स टू रेलवेज, यू कैन इंस्टेड राइट दैट वी नीड मोबिलिटी ट्रांजिशन, वी नीड एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। यह जी की टर्म्स याद रखो, राइट। उस तो बाद अगला पॉइंट, इस तो बाद डिटेल्ड रिकमेंडेशंस जो इन्ना ही डायरैक्शन च आपां नूं लैके जाणगे, इन्ना 2 डायरैक्शनस च वो आपां रिपोर्ट दियां देख लैंदे हैं। सो देखो इन्होंने कहा फॉसिल फ्यूल बेस्ड सबसिडीज़ बिल्कुल खत्म कर दो, यह जी जो गवर्नमेंट दियां स्कीम्स है जो पेट्रोल डीजल वहीकल्स नूं प्रमोट कर दियां वो खत्म करना चाहिए है। रादर ई वहीकल CNG इन्हां नूं आपां नूं सपोर्ट सबसिडी देनी चाहिए है, ठीक है। अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कीवर्ड है, याद रखो। ASI तो याद रख लो, ASI साहब है ना। अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव, अवॉइड की करना है असी अननैसेसरी ट्रिप्स, जिवें मैं तुहानूं क्या, अगर तुहाडा स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस बहुत ही कोले है तुहाडे घर दे, दैन वाई यूज़ अ वहीकल, यू कैन यूज़ योर फीट, हेल्थ भी अच्छी रहू, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहू, है ना। सो अवॉइड अननैसेसरी ट्रिप्स, राइट। शिफ्ट टू सस्टेनेबल वेज, राइट। जिमें कि अगर थोड़ी दूर है भी तो वहीकल की लोड़ है भी, दैन यू कैन गो बाय बाईसाइकिल, थोड़ी एक्सरसाइज भी होएगी 20 मिनट या आधा घंटा आंदे जांदे, एंड तुसी पहुँच भी जाओगे एंड इन्वायरमेंट भी सेव करोगे। सो ट्राई टू शिफ्ट टूवर्ड सच सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, राइट। एंड इम्प्रूव जिन्नी ज़्यादा हो सके एनर्जी एफिशिएंसी इनक्रीज़ करनी चाहिए है, कि साडा वहीकल अगर चल भी रहा है पेट्रोल ते डीजल ते या किसी और यह जे रिसोर्स ते, तो उन्होंने एफिशिएंटली यूज़ करे, एमिशंस घटन, कॉस्ट घटे, बट एफिशिएंसी वधे। दैट इज़ वॉट वी नीड टू फोकस, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। इनक्रीज रिलायंस ऑन जीरो कार्बन इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। कार्बन की जगह ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, हाइड्रोजन, नैचुरल गैस, यह जी चीज़ां ते सानू ज़्यादा फोकस करना चाहिए है। कार्बन जी है वो इन्वायरमेंट नू काफ़ी खराब करती है, साड़ी हेल्थ नू काफ़ी खराब करती है, सो उन्होंने सानू अवॉइड करना चाहिए है, राइट। मार्केट रैंप अप ऑफ पावर टू एक्स फ्यूल्स, राइट। सो बेसिकली इस क्या ही जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव वेज दी, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की मार्केट नू भी सानू बूस्ट करना चाहिए है। जिवें देखो हाइब्रिड जोड़ा है, अगर तुसी देखो MG जी कंपनी है उन्होंने हाइब्रिड वहीकल्स इंट्रोड्यूस किए सी थोड़ी देर पहला, बट ज़्यादा वायबल नहीं लग्या, कॉम्पीटिटिव नहीं लगी मार्केट, तो उन्होंने वो ज़्यादा अगे प्रोसीडिंग्स नहीं कीतियां। सो इंडियन गवर्नमेंट नू ये फैसिलिटेट करना चाहिए है कि जो मार्केट है वो भी यह जे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, सस्टेनेबली प्रोवाइड करे कंज्यूमर नू, ताकि पूरा ईकोसिस्टम क्रिएट होवे ये मोबिलिटी ट्रांजिशन का, ना ही जस्ट कंज्यूमर च डिमांड होवे, पहला उत्थे प्रोवाइडर्स भी होने चाहिए ने, राइट। ऑल दोज थिंग्स वी नीड टू डू, ठीक है। इस मेन पॉइंट्स याद रखो, आंसर्स वगैरह तुसी लिख सकते हो, राइट। दैट इज़ हाउ दे विल हेल्प यू।
ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਵਹੀਕੂਲਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਹੀਕੂਲਰ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਥੀਸ ਵਿਦ ਯੂ। ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਨॉर्म्स, फेम स्कीम, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ਲਈ ऑलरेडी नीति आयोग ने एक फॉरम भी बना रखी है ताकि ये रिकमेंडेशंस वगैरह देगी। फॉरम का मतलब है एक बॉडी जिस विच एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स या इकोनॉमिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, NGO पीपल, प्राइवेट पीपल कैन बी सिटिंग एंड दे विल बी रिकमेंडिंग, राइट। सो नैशनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इज़ देयर, राइट। अगेन फेम ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਸੈਸਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਬਿਗਿਨਰਸ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਨॉर्म्स ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ बुक, मतलब इन्वायरमेंट इन्नी डिटेल च ना पढ़िए, PCS च नहीं आंदा। तो देखो क्वेश्चन किसी भी टर्म, किसी भी आइडिया, किसी भी स्पीशी, नैशनल पार्क ते आ सकता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि थोड़ा अच्छे तरीके नाल तैयारी करो, स्पैशली अगर करंट अफेयर्स च जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो ये तुहाडे लई सारे इंपॉर्टेंट है। इन्हां नाल रिलेटिड टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, जिवें कि क्लाइमेट चेंज हो गया, राइट, ट्री कवर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोम हो गया। ये तो सब बेसिक्स है जो तुहाडी नॉलेज बिल्ड करते हैं। सो इन्हां सब ते क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यू कैनॉट से कि डिटेल विच नहीं आएगा जी पंजाब PCS च, एवें नहीं है। पंजाब PCS कैन ऑल्सो आस्क काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन। सो आई वुड रिकमेंड कि ज़्यादा स्किप ना करो, इट कैन बी डिट्रीमेंटल इन दी एग्जामिनेशन, राइट। मेन्स च हजे इन्ने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट प्रीलिम्स च तुसी एक्सपैक्ट जरूर कर सकते हो। कार्बन टैक्स क्या है, राइट, कार्बन मार्केट क्या होंदी है, सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, ओशन एसिडिफिकेशन क्या है, किवें होंदी है, एजे कॉन्सैप्ट से बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो चाहे टॉपिक की डिटेल विच ना जाओ, बट सारे टॉपिक्स नू टच जरूर करो, राइट। सो दिस इज़ इट। नैक्सट टॉपिक, हाँ इस तो बाद देखो असी ऑलरेडी तुहाडी मदद लई काफ़ी सारे कोर्सेज पंजाब नाल रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड, राइट। तो तुसी इन्हां नू अडॉप्ट, जो भी तुहाडी रिक्वायरमेंट है उहदे अकॉर्डिंग यू कैन गो थ्रू दीज, ठीक है। मैंटरशिप कोर्स है, अगर तुसी देखना चाहते हो कि तैयारी करनी किवें है, यू आर लॉस्ट, यू डू नॉट नो कि पढ़ना किवें है या रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस मैंटरशिप कोर्स, ठीक है। सो इनू इनरोल करो। इहदे विच प्रीलिम्स दी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी तुहानू। पॉलिटी दा क्रैश कोर्स, इस क्रैश कोर्स च देखो इन्ने अच्छे तरीके नाल पॉलिटी नू मैं ब्रीफ वे च कवर किया है दैट यू विल नॉट रिक्वायर टू रीड एनीथिंग एल्स इफ यू हैव कवर्ड द क्रैश कोर्स एट दिस प्लेस, राइट। एंड इसी तरीके नाल मंथली मैगजीन्स भी पंजाब स्पैसिफिक साडी आ रही हैं। सो वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़ यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट और यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर, वी विल हेल्प यू आउट विद whatever your requirement is. WhatsApp कर दो, right, will respond back to you whatever your query is, right। और पंजाब दा फुल लेंथ GS कोर्स भी असी लॉन्च कर चुके हैं। सो अगर तुसी वो भी ज्वाइन करना चाहते हो दैन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। देखो कोर्सेज तुहानू बहुत मिल जाएंगे, बट वॉट इज़ डिफरेंट विद अस इज़ यू गेट रेगुलर मैंटरशिप फ्रॉम अ रैंकर हरसेल्फ, ठीक है। बाकी जगह ते तुहानू टीचर्स मिलणगे, राइट, बट किते भी तुहानू एक रेगुलर वे ते ओह गाइडेंस, ओह मैंटरशिप नहीं मिलनी जो तुहानू दस सके कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किवें करना है। दैट इज़ वॉट इज़ मिसिंग एट अदर प्लेसिस, राइट। सो गाइडेंस चाहिए होंदी है। पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं पर क्यों नहीं कढ़ पाते सारे, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। द थिंग दैट इज़ मिसिंग इज़ गाइडेंस, एडिकुएट गाइडेंस जो उन्होंने दस सके कि की गलत हो रहा है, की सही हो रहा है, एंड दैट विल बी प्रेजेंट इन आर फुल कोर्स, राइट। सो इसलिए डू कंसिडर ज्वाइनिंग द कोर्स। नाउ नेक्स्ट करते हैं सिख श्राइन हेमकुंड साहिब टू ओपन फॉर पिलग्रिम्स ऑन May 25, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है सिख धर्म की। हर साल आप इतने ऑलमोस्ट यू नो काफ़ी सारे पिलग्रिमेज जोड़े लोग है वो जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कर लेने। कई बार प्रीलिम्स जो क्वेश्चन आ सकता है, तो बेसिक ये फैक्चुअल टाइप इन्फॉर्मेशन याद रखांगे हेमकुंड साहिब के बारे, ठीक है। सो उत्तराखंड में ये अपनी साइट अवेलेबल है चमोली डिस्ट्रिक्ट दे विच, राइट। उत्तराखंड जी तुहाडी स्टेट है चमोली डिस्ट्रिक्ट दे विच प्रेजेंट है, जिते तुहाडे बद्रीनाथ वगैरह साइट्स भी हैगियां ने ओदे ही
ਨੇੜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ये समर ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ बहुत ही ज़्यादा हाइट ते है, ये 15,000 फीट तो ज़्यादा दी हाइट ते ये सिचुएटेड है। तो यह गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े साडे 10वें गुरु है उन्हां नाल रिलेटेड है। ये मन्निया जाता है कि 10 साल गुरु गोबिंद सिंह जी ने इत्थे ही बैठ के मैडिटेशन या टाइम स्पेंड किया सी। दैट इज़ वाई दिस गुरुद्वारा इज़ हाईली सिग्निफिकेंट इन दी सिख रिलीजन, राइट। सो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमकुंड का क्या मतलब है, इसका नाम हेमकुंड क्यों पिया, लेक ऑफ स्नो। अगर तुसी इहदी लोकेशन देखो, होर बैटर पिक्चर्स देखो, ये बिल्कुल आई लगता है कि स्नो दे विच, स्नो दी लेक दे विच एक गुरुद्वारा तुसी रख दिता है। हर पासों यह पर्वत नाल या माउंटेन्स नाल घिरिया होया है, चारों पासों बड़े बड़े माउंटेन्स, 7 स्नो कैप्ड पीक्स, राइट, इंक्लूडिंग हाथी पर्वत, सप्त ऋषि पीक्स, यह जी बहुत सारी पीक्स इनू सराउंड कर दिया है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वाइट एरिया तुसी कह सकते हो एक स्नो लेक की तरह प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हेमकुंड भी पिया, राइट। सो ये देखो यदी एक होर खासियत क्या है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनू आपदे नाटक बचित्र नाटक विच भी मैंशन किया है, ठीक है। बचित्र नाटक अगर किसी ने पढ़िया है या उसदे बारे कुछ इन्फॉर्मेशन तुसी कभी भी रेफर की है, यू विल नो कि हेमकुंड साहिब का मैंशन उत्थे भी पाया जाता है, राइट। इसलिए काफ़ी सारे जो सिख धर्म के फॉलोअर्स सी उन्होंने इस गुरुद्वारा की रेफरेंस पढ़ के इनू एक्चुअली इहदी लोकेशन नू लभन की कोशिश की सी। सो पहले यह जे इंसान जिन्हां ने यह सफ़र शुरू किया टू फाइंड आउट, टू सर्च फॉर दिस प्लेस दैट वॉज मैंशनड इन दी दसम ग्रंथ बचित्र नाटक, ਉਹ ਸੀਗੀ पंडित तारा सिंह नरोत्तम। इन्हां ने 1884 विच एक खोज जिहड़ी है शुरू की एंड इस हेमकुंड साहिब की लोकेशन नू एक्चुअली आइडेंटिफाई किया, राइट। उस तो बाद गुरुद्वारा जिहड़ा है प्रॉपरली इत्थे एस्टैबलिश होया सी विद दी कॉन्ट्रीब्यूशन फंडिंग एंड ऑल। उस तो पहला गुरुद्वारा नहीं सी, बट ये रेवर्ड लोकेशन जरूर एग्जिस्ट करती सी, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ प्रीलिम स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन याद रखो। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ भी काफ़ी रहिंदा है, ठीक है। सो क्वेश्चन जिहड़ा है पूछा जा सकता एग्जामिनर द्वारा, स्पैशली प्रीलिम्स दे विच। सो इन्नी क इहदी इन्फॉर्मेशन याद रखो। ईवन हिंदू माइथोलॉजी नाल भी इनू रिलेट किया जाता है, सो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जेन ब्रह्मोस मिसाइल, राइट। हुण देखो मिसाइल्स जिहड़ियां है बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे प्रीलिम्स दे लई। यूपीएससी भी हर ऑल्टरनेट ईयर एक ना एक मिसाइल ते क्वेश्चन पूछदा ही है, कदी अग्नि कदी ब्रह्मोस, राइट। तुहाडे पंजाब पीसीएस ने भी ब्रह्मोस ते क्वेश्चन पूछा होया है एंड दोबारा भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार पूछ लिया तो दोबारा ना आवे, राइट। सो ब्रह्मोस मिसाइल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हुण इस न्यूज़ बारे पहला देख लें, न्यूज़ च क्या है। देखो ब्रह्मोस दा तुसी कह सकते हो नवा एडिशन जिन्हों नैक्सट जैन ब्रह्मोस कहा जा रहा है, ओह हुण सामने आया है एंड इंडिया इज़ ट्राइंग टू प्रोक्योर दीज नैक्सट जैन ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया को पहला ही सी, ठीक है। हुण असी नई टैक्नोलॉजी वाली नैक्सट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्वायर कर रहे हैं। सो साडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दे दिता है कि 200 नैक्सट जैन ब्रह्मोस मिसाइल असी एक्वायर करांगे एट द कॉस्ट ऑफ 19,000 करोड़, राइट। इन्ना पैसा ला के असी ये हाई टैक्नोलॉजी मिसाइल्स आपदे डिफेंस सिस्टम, आपदे डिफेंस आर्सनल दे विच ऐड करांगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ ब्रह्मोस की सारी डिटेल मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर दी, उत्ते क्वेश्चन आ सकते हैं। बस एक डिफरेंस दसदा, तुसीं सोच रहे होंगे ब्रह्मोस ते ब्रह्मोस नैक्सट जैन च किन्ना क डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। जिवें तुहाडा आईफोन 11, 12, 13 आंदा है, फर्क तो कोई नहीं हुंदा, साइज़ बड़ा छोटा कर दिंदे है, ठीक है, बस पैसे ज़्यादा लैंदे है, राइट। वो यूजलैस है, बट दिस हैज़ सम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। क्या इंप्रूवमेंट है, इहदी रेंज जिहड़ी है किन्नी दूर ये जा सकता है, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है, दैट इज़ एट मैक्स 290 किलोमीटर, राइट।
ਨਾਓ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਓਵਰ ਦੀ ਅਰਲੀਅਰ ਮਿਸਾਈਲ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ MTCR ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ MTCR? ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਜੀਮ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ NSG, ਵਾਸਨੇਰ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਸਭ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। MTCR, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕਿਆ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ MTCR 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਵਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਲੌਂਗਰ ਰੇਂਜ ਮਿਸਾਈਲਸ ਆਲਸੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ capable of importing such longer range missiles, ठीक है। so this is what has changed now for India, ठीक है। so ब्रह्मोस ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ब्रह्मोस ਨਾਮ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ब्रह्मपुत्रा मोस्कोवा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, तो इसीलिए ब्रह्मपुत्रा इंडिया वाली रिवर, मोस्कोवा रशिया दी रिवर, इनू मिला के इहदा नाम पिया है ब्रह्मोस, ठीक है। टू स्टेज मिसाइल है, यानी कि सॉलिड ते लिक्विड प्रोपेलेंट दो स्टेजेस होणगियां इहदियां। सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक यानी क्या है? साउंड दी स्पीड नालों इहदी स्पीड जिहड़ी है ज़्यादा है, राइट। सो ये सुपरसोनिक है। क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल क्या हुंदा है? सो क्रूज मिसाइल जरूरी नहीं है कि ट्रैजेक्टरी फॉलो करे, ये जी ट्रैजेक्टरी है बिलास्टिक मिसाइल तुहाडियां फॉलो करदियां है। क्रूज मिसाइल क्या हुंदी है? यूजुअली तुसी एक लोकेशन दे कोआर्डीनेट सैटअप करते, उस तो बाद मिसाइल किवें भी जा सकती है, स्ट्रेट भी जा सकती है, इस तरीके नाल कोई भी पाथ फॉलो कर ले, बट उसने उस बस टारगेट नू हिट करना है, राइट। बिलास्टिक मिसाइल च भी तुसी लोकेशन सेट कर दोगे, बट इट विल फॉलो दी ट्रैजेक्टरी, ठीक है। ये इस तरीके नाल नहीं जा सकती, राइट। सो इट इज़ अ क्रूज मिसाइल। याद रखना इन्ना फैक्ट्स ते ही क्वेश्चन आता है, वो चार स्टेटमेंट बना देंगे। इट इज़ अ सबसोनिक मिसाइल, इट इज़ अ ब्लास्टिक मिसाइल, इट इज़ अ क्रूज मिसाइल, इट्स रेंज इज 600 किलोमीटर। यू हैव टू चूज विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करैक्ट, हाउ मैनी पेयर्स आर करैक्ट। अजकल तो पेयर का जमाना चल गया है, पंजाब PCS भी तो जरूर औखा करेगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। सारी कमिशनस, हरियाणा ने इस बार एग्जाम पाया सी, दे ऑल्सो यूज्ड दिस पेयर वाला सिस्टम, सो पंजाब कैन ऑल्सो डू दैट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। सो ये छोटे छोटे फैक्ट्स जिहड़े याद रखने हैं। ब्रह्मोस, अग्नि, यह जे बहुत सारिया जिहड़ियां अपनी आकाश वगैरह मिसाइल्स हैं, निर्भया, उन्हां बारे इन्फॉर्मेशन लिख के रखो। रेंज यदि है ये पुरानी वाली दी है जिहड़ी अप टू 300 किलोमीटर या 290 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। जिहड़ी हुण नवीं आई है, क्वेश्चन च देख लियो, ब्रह्मोस नैक्सट जैन बारे पूछ रहे हैं कि ब्रह्मोस बारे, ओदी रेंज 500 किलोमीटर होएगी, ठीक है। ये ब्रह्मोस मिसाइल तुसी किसी भी प्लेटफॉर्म तो लॉन्च कर सकते हो, चाहे सबमरीन च तुसी इहनू बिठा लो तो सबमरीन पानी च लॉन्च कर दो, शिप्स तो लॉन्च कर सकते हो, किते भी एयरक्राफ्ट्स तो भी, जो फाइटर जैट्स वगैरह तुहाडी फाइट चल रही है उत्थों भी तुसी ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। तो ईवन लैंड ते खड़े खड़े बॉर्डर ते समझ लो आपां ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करनी है, देयर ऑल्सो वी कैन लॉन्च इट, ठीक है। सो ऑल द प्लेटफॉर्म्स आर देयर। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल फॉलो करता है। फायर एंड फॉरगेट का क्या मतलब है? तुसी एक बार कोऑर्डिनेट सेट करते कि इस जगह ते जाके स्ट्राइक करना है, राइट। नाउ इट विल गो इटसेल्फ, तुसी देखना नहीं है कि ये सही जा रही है कि नहीं, वो अपने आप फॉलो करेगी एंड इट विल रीच देयर। सो दैट प्रिंसिपल इट फॉलोज। स्पीड अगर एग्जैक्टली देखनी होवे, साउंड की स्पीड तो ज़्यादा है, बट कितना 2.8 मार्क यदि स्पीड होएगी, राइट। उस तो बाद ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल आप इंडक्ट कर चुके हैं अपने, हुण असी ब्रह्मोस नैक्सट जैन जिहड़े अपनी नेवी विच भी इंस्टॉल कर दिती है, राइट। सो दिस इज़ वॉट आई एक्सप्लेनड यू, ठीक है। दिस इज़ वॉट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये याद रखो है जी, बहुत सारी मिसाइल्स होर हैं जिहड़ियां तुसी रिमेंबर करनी है प्रीलिम्स दे लई। ये जिहड़ी है इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर वाली मिसाइल है, याद रखो। प्रीलिम्स ਲਈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੇਨਸ ਲਈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ।
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ हैं। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, $375 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪਲਾਈ ਇਟ ਟੂ ਦੈਮ ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਗੀ, ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜ ਦੇਗੀ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਬੁਲੀ ਇਨ ਦ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਡੂ दैट ਆਲਸੋ, ठीक है। सो ये बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स है। मेन्स दे एह जे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग अप्लाई करा करो, राइट। नेक्स्ट करते हैं राइजीना डायलॉग, बहुत इंपॉर्टेंट अगैन इवेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रीलिम्स च भी क्वेश्चन आ सकता है, मेन्स च भी, ठीक है। सो राइजीना डायलॉग है क्या? फ्लैगशिप इंडिया का है, पहली गल तो याद रखनी है, इंडिया कंडक्ट करांदा है हर 2 साल विच एक बार, राइट। बाय इनियल कहते हैं हर 2 साल विच या ये एनुअल है, सॉरी, दिस इज एन एनुअल इवेंट। इंडिया कंडक्ट करांदा है, फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी, राइट। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे गलबात करना, डिस्कशन करना, कंसर्नस देना, उन्होंने सब ते इत्थे गलबात हुंदी है। हर साल कंडक्ट हुंदा है, प्लीज़ ये करैक्ट कर लेना, बाइनियली नहीं है, एनुअली हर साल कंडक्ट हुंदा है। 2016 विच इहदी बिगनिंग हुई सी, दिस इज़ वेरी लेटेस्ट फिनोमिना, राइट। केड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इनू कंडक्ट करांदियां है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है इंडिया दी, प्लस साडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों मिलके इनू हर साल कंडक्ट करांदियां ने, राइट। सो वर्ल्ड दे जिहड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स ने, थ्रैट्स ने, चैलेंजेस ने, उन्हां ते बैठ के चर्चा तुसीं कह सकते हो, चाय पे चर्चा टाइप्स काम है इहदा, राइट। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ वगैरह है राइजीना, एक्चुअली राइजीना हिल जिथे साडा राष्ट्रपति भवन है उस जगह ते नाल रिलेटेड ਇਹਦਾ नाम रखा गया है, राइट। राइजीना डायलॉग कम्स फ्रॉम द राइजीना हिल, एन एलिवेशन इन न्यू दिल्ली, सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ इंडिया, राइट। इंडिया नू रिप्रजेंट करता है, ये इंडिया की पावर वाली जगह नू रिप्रजेंट करता है, इसलिए इसका नाम राइजीना डायलॉग रखा गया है। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन शांग्रीला डायलॉग, अगर तुसीं देखा होवे, यह भी जियोपोलिटिकल सैमीनार हुंदा सी सिंगापुर दे विच, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਗਰੀਲਾ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, राइट। सो दिस इज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल की थीम याद रखो, थीम ते क्वेश्चन आ सकता है चतुरंगा, चतुरंगा यानी कि 4 एरियाज ते फोकस कर रहा है इस साल का राइजीना डायलॉग। व्हाट इज़ दोज 4 एरियाज? कन्फ्लिक्ट्स जेड़े हो रहे ने, कंटेस्ट जेड़ा हो रहा है, या कोऑपरेशन जेड़ी रिक्वायर्ड है, ते क्रिएशन ऑफ पीसफुल वर्ल्ड वगैरह, कि मैं भी याद कर लो, ये 4 C's ते दा थीम है। ये तो क्वेश्चन डायरैक्ट आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या सीधा थीम ते क्वेश्चन आ सकता है। पुरानी थीम्स ये पा देंगे तुहानू कन्फ्यूज करने लई, तो इनू ध्यान रखना है। दिस साल दी थीम इज़ चतुरंगा, 4 C's, राइट। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट रिमेंबर। नाउ गवर्नमेंट ओकेज चेंजेस इन स्पेस फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, FDI का कॉन्सैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इकोनॉमी का यह ਤੁਹਾਡਾ कॉन्सैप्ट है, इनू डिटेल विच पढ़ो। बेसिक्स इकोनॉमी का तो यार एक ही रूल है, अगर बेसिक्स क्लीयर ने तुहाडे दैन देर इज़ नथिंग, नो क्वेश्चन दैट विल बीट यू, राइट। तुसी सारे सवाल अच्छे करके आओगे। एक इकोनॉमिक्स, एक जोग्राफी है जो सब्जैक्ट ने, राइट, लॉजिकल ने, जिन्हें जब तुहानू लॉजिक समझ आ गया कोई सवाल गलत नहीं होएगा, अगर लॉजिक समझ नहीं आया तो कोई भी सवाल सही भी नहीं होएगा, राइट। और वो तो बाद पॉलिटी हिस्ट्री यह जे सब्जैक्ट ने जिस च रट्टे मारने ही है, सो रट्टे बज गए चंगी तरह ट्रिक्स नाल तां तुहाडा पॉलिटी हिस्ट्री क्लीयर है, नंबर वधिया आएंगे, अदरवाइज नंबर 0, ठीक है। सो इसलिए वो क्रैश कोर्स वगैरह असीं डिज़ाइन किया है, फुल कोर्स असीं इसी विजन नाल डिज़ाइन किया है। पॉलिटी हिस्ट्री च तुहाडे पूरे रट्टे लगाने हैं, इकोनॉमी जोग्राफी च तुहाडे पूरे कॉन्सैप्चुअल क्लैरिटी लियानी है।
दैट इज़ वेयर आर फोकस वुड बी। इसीलिए फुल कोर्स ਨੂੰ ਵੀ ज्वाइन करो। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कनैक्ट विद अस ऑन दिस नंबर, विल बी देयर टू असिस्ट यू, राइट। ਹੁਣ स्पेस पॉलिसी विच क्या चेंज आया, देखो किसी भी सैक्टर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ, ਰੋਡਸ ਨੂੰ, ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ इंडिया ਲਈ बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया की नीड्स बहुत है, असी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बहुत टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है, सो पैसा भी बहुत चाहिए है। तो वो पैसा कित्थे आएगा? फॉरेनर्स जेडे है उन्होंने कोल काफ़ी पैसा है, दे आर डेवलप्ड, दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे वॉन्ट टू ग्रो देयर मनी, इसलिए वो इन्वेस्ट करते आपके पैसे, राइट। सो बट अगर कोई पैसा तुहाडे बिजनेस चला रहा, तुहाडी कंट्री चला रहा, उन्होंने ज़्यादा चिक चिक नहीं चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने नहीं चाहिए कि जगह जगह ते तुसी साइन कराई जाओ, फॉर्म भरवाई जाओ, अप्रूवल दिलाई जाओ, यू नो चैकिंग जी करी जाओ, फिर इन्वेस्टर जिहड़ा कहंदा नहीं यार इत्थे नहीं इन्वेस्ट करना, राइट। सो ओही विजन नाल इंडिया वॉन्ट्स कि इन्वेस्टमेंट्स आन स्पेस दे सैक्टर विच ते ईजीली आन, दे शुड नॉट फीयर फ्रॉम कमिंग इन टू इंडिया। तो इसलिए स्पेस सैक्टर विच फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI दे रूल्स नू रिलैक्स किया गया है। पहला क्या हुंदा सी, जिन्नी भी इन्वेस्टमेंट 100% FDI दे थ्रू इन्वेस्टमेंट अलाउड सी, बट गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट तो तुहानू गवर्नमेंट रूट जिन्हों कहते हैं, गवर्नमेंट तो अप्रूवल लेना ही लेना पएगा। बट हुण बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन इंडिया ने देती है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट FDI कैन कम थ्रू ऑटोमैटिक रूट, मतलब कोई अप्रूवल की लोड़ नहीं, सीधा आओ तो कंपनी च पैसे लाओ, राइट। थोड़ी बहुत ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहनगियां, बट मोस्ट ऑफ द FDI कैन कम फ्रीली, ठीक है। तो थोड़ा जाओ देख लेने हैं। So, by changing the current policy, government has allowed 74% FDI through automatic route in satellite manufacturing, operations, satellite data products, ground and user segments. मतलब इस एरिया च 75% इन्वेस्टमेंट तुसी 74% इन्वेस्टमेंट ऑटोमैटिकली कर सकते हो, बट अगर 100% तक करना चाहते हो तब उहदे लई तुहानू गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, राइट। सो इन्ना चेक है इत्थे। दूसरा, लॉन्च वहीकल्स, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स, इस एरिया विच 49% तक ऑटोमैटिक रूट के थ्रू अलाउ कर दी गई है। बाकी अगर तुसी फिर ये तो ज़्यादा करना चाहते हो, अगैन यू विल नीड अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द चेंज, ठीक है। सो FDI नू बेसिकली पढ़ो, क्वेश्चन आ सकता है, इस ते भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने क्या चेंज किया। स्पेस सैक्टर दे एरिया च भी तुसी ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो, दैट इंडिया इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स इनटू द स्पेस सैक्टर, हाउ, बाय रिलैक्सिंग द FDI रूल्स एंड नॉर्म्स, राइट। इस तरीके नाल यूज़ करना है। नाउ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान मिशन, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी बहुत ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इंडिया ने यह टेक्नोलॉजी बना ली है, वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट। साडे लिए ये बेसिक साइंसिस का कॉन्सैप्ट है जिते क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दस दी है, तुसी बाकी डिटेल खुद पढ़नी है, और यू कैन गेट इट इन आर क्लासेस व्हेन यू जॉइन द GS कोर्स, उत्थे तुहानू डिटेल च असीं पढ़ावांगे, राइट। क्रायोजेनिक्स हुंदा क्या है, देखो क्रायोजेनिक्स है कि किसी गैस नू, किसी एलीमेंट नू तुसी अल्ट्रा लो टैंपरेचर ते कूल कर दो कि वो लिक्विफाई भी हो जाती है, ठीक है। सो जिमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह हो गया, तुसी इन्हां नू -160 -253 यह जे इन्ने लो टैंपरेचर ते लिया के इन्हां नू इन्हां दी प्रॉपर्टीज चेंज हो जांदियां है, राइट। एट दैट लैवल यू आर यूजिंग दीज गैसेज फॉर योर रिक्वायर्ड पर्पसेस, ਉਹਨੂੰ क्रायोजेनिक्स कहते हैं। बेसिकली बहुत लो टैंपरेचर ते लिया के जो तुसी एक एलीमेंट दी प्रॉपर्टीज नू चेंज कर रहे हो तो ਉਹਨੂੰ यूटिलाइज कर रहे हो आपके बेनिफिट ਲਈ, राइट। दैट इज़ वॉट इज़ द क्रायोजेनिक्स साइंस, राइट। सो ये साइंस हुण बहुत जगह ते यूज़ हुंदी है, मैडिकल फार्मासूटिकल इंडस्ट्री च, फूड इंडस्ट्री विच, स्पेस इंडस्ट्री विच, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जगह जगह ते इहदी एप्लीकेशंस है, राइट। तो करंट आप जिहड़ी गल कर रहे हैं वो है एप्लीकेशंस एज क्रायोजेनिक इंजन इन दी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स एंड ऑल, ठीक है। सो अगर तुसी स्पेस सैक्टर बारे भी डिटेल च पढ़िया है, प्लीज़ इस दे बारे पढ़ो, ठीक है। इंजनस वगैरह दी स्टेजेस वगैरह वाले कॉन्सैप्ट पढ़ो। फर्स्ट सॉलिड स्टेज जिवें हुंदा है, लिक्विड स्टेज अजकल जिहड़ा चल रहा है, उहदी थर्ड स्टेज हुण क्रायोजेनिक इंजन बन गई है। ये काफ़ी एज आई टोल्ड यू एफिशिएंट हुंदा है, कॉस्ट इफेक्टिव हुंदा है,
ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਥਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੈਬ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇयर ਯੂ ਕੈਨ ਇਵੈਲੂਏਟ ਇਟ, ठीक है। अगर तुहानू प्री रिक्वायर्ड है तो सानू मैसेज करो, विल हेल्प यू ऑन प्री पेमेंट बेसिस, यू कैन गेट इट दैट इन दैट वे ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ दिस क्रायोजेनिक इंजन इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है। ये डिटेल जिहड़ी है आपदी तुसी रेफरेंस बुक तो कवर कर सकते हो, जिहड़ी मैं रिकमेंड भी की है बुक लिस्ट च, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड ऑल दीज डिटेल्स, और यू कैन जॉइन आर क्लासेस ऑल्सो, देयर विल कवर एवरीथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन डिटेल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आप एक्सपैक्ट कर ही सकते हैं। नाउ प्रीलिम्स ਲਈ ਇਹ इंपॉर्टेंट है, नोटेड ज्यूरिस्ट फली एस नरिमन साहब, ही हैज़ पासड अवे, सो इन्हां बारे थोड़ा कर लेने क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सी। इन्हां नूं पद्म भूषण 1991 च दिता गया, पद्म विभूषण 2007 विच, एंड ए फॉर्मर राज्य सभा मैंबर भी रह चुके ने, राइट। सो इन्हां ते इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, ये फैक्ट्स याद रखो। फिर इन्हां ने काफ़ी सारी बुक्स लिखिया ने, प्लीज़ बुक्स दे नाम याद रखो, क्योंकि बुक का नाम लिख के दे कैन आस्क, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑन फली नरीमन डायरेक्टली, दे विल जस्ट गिव यू द बुक नेम एंड देन आस्क कि ਇਹਦਾ राइटर कौन है, राइट, बिकॉज दिस इज इन न्यूज़, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ये बुक्स दे नाम साइड ते लिख के रखो, ये किसी को भी याद नहीं रहता है, बट जो पेपर आएगा उस तो जो 2-4 दिन पहला, हफ्ता पहला ये रिवाइज करोगे डाटा, फिर याद रहेगा, ठीक है। सो ये प्रीलिम्स वाले नोट्स अलग बना के रखो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। मेंटरशिप कोर्स तो इसी तरीके नाल हेल्प करेगा, देयर यू विल नो हाउ टू मेक दिस नोट, हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस नोट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट है मिलान एक्सरसाइज, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस एक्सरसाइज इज बाईनियल, इसीलिए मैं उत्थे गलती नाल कह दिता सी, बाईनियल मतलब 2 सालां विच एक बार हुंदी है, राइट। इंडिया कंडक्ट करांदा है, एंड इंडिया दी भी ईस्ट नेवल कमांड, नेवी, इंडियन नेवी, उस चो भी ईस्ट नेवल कमांड हर साल इनू कंडक्ट करांदी है, हर साल मतलब बाईनियली, हर 2 साल एक बार कंडक्ट करांदी है। डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट कर दिया हैं, राइट। आपदी वॉरशिप्स लियानगे, आपदे वो सोल्जर्स वगैरह लियाते ने, सब मिलके यू नो टेक्नोलॉजी शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, इंटरऑपरेबिलिटी, यह जी सारी चीज़ां इस एक्सरसाइज में चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन की ये एक्सरसाइज है, इस बार विशाखापट्टनम विच इनॉग्रेट हुई है। थीम क्या है? पार्टनर्स अक्रॉस ओशियंस, कोलैबोरेशन, सिनर्जी, ग्रोथ। 2024 का ये थीम है, याद रखो, अगेन क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो इस बार यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, नंबर ऑफ कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के नाम याद करने की इन्नी कोई ज़रूरत नहीं है, बट थीम, प्लेस, कौन कंडक्ट करांदा है, ये सब याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है इस एक्सरसाइज से। प्रीलिम्स का है, कुछ ज़्यादा समझाने वाला इस च है नहीं है, राइट। नाउ पीएम मोदी रीसेंटली गुजरात में एक मंदिर च गए सी, इसीलिए मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है प्रीलिम्स च क्वेश्चन पूछा जाए। सो वलीनाथ महादेव टैंपल, राइट, वलीनाथ महादेव टैंपल, तुसीं पहली गल ये याद रखना है कि ये शिवा टैंपल है, ठीक है, ये याद रखना है। वैष्णवाइट, यू नो शिवाइट टैंपल्स होंदे है, सो शिवा टैंपल है इत्थे गुजरात विच ये लोकेटेड है। इन्नी इन्फॉर्मेशन याद रखो, दैट इज़ इनफ, ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल है भी नहीं है, राइट। ये पीछे हुण एक स्टोरी है कि ये टैंपल बनया किवें सी, राइट। इट इज़ बिलीव्ड कि लॉर्ड कृष्णा ने हिमसैल्फ ही एस्टैब्लिश दिस टैंपल। हुण जिहड़े वैष्णवाइट्स है उन्होंने तो ये स्टोरी पसंद नहीं आनी है, बट आई विल जस्ट टेल यू टू रिमेंबर दिस टैंपल बेटर। सो देखिए कुछ टाइम ਲਈ लॉर्ड कृष्णा, ਜਿਹੜੇ कृष्ण जी है वो द्वारका विच रहिंदे सी। प्लीज़ सी लोकेशन ऑफ द्वारका ऑन इंडियाज़ मैप, अगर तुहानू नहीं पता था, ठीक है। सो इत्थे इस जगह ते काफ़ी समय तक उन्होंने रिजाइड किया है। सो ही यूज टू रोम अराउंड ऑल द प्लेस, ठीक है, जंगलों के विच जगह जगह ते घूमते रहंदे सी, ते उत्थे रास लीला भी रचांदे सी, राइट। रास लीला च कभी भी किसी नू जाना अलाउड नहीं सी अदर दैन कृष्णा एंड हिज गोपीज। बट एक बार क्या हुंदा है कि लॉर्ड शिवा गोपी का रूप धार के इस जगह ते पहुंच जाते हैं जिथे कृष्ण जी रास लीला कंडक्ट कर रहे होंगे है, राइट। नाउ हुण
शिवा उत्थे पहुंच जाते ने एंड कृष्णा उन्होंने रिकगनाइज कर लेंदे है कि ये तो लॉर्ड महादेव ने, ठीक है। वो उन्होंने कहते हैं कि प्रभु की तुहाडे मुख नूं तुहाडे निखार नूं मैं किवें नहीं पहचान सकदा, बी काइंड ऑफ आई एम वेरी ओबलाइज्ड दैट यू आर हेयर, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इसलिए ये कहा जाता है कि उस टाइम ते लॉर्ड कृष्णा ने खुद शिवाजी नूं रिस्पैक्ट करते हुए उस टाइम ते यह टैंपल बनवाया, लिंगम दी भी उत्थे एस्टैबलिशमेंट की, राइट। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड इट, यू कैन रीड ऑल द अदर डिटेल्स इफ यू आर इंटरस्टेड। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यदि लोकेशन याद रखो, कई बार मैच द फॉलोइंग च आ जाता है, दिस टैंपल इज़ वेयर, दिस टैंपल इज़ वेयर। जिन्ने भी टैंपल अजकल न्यूज़ च मैंने वो पूरी शॉर्ट वीडियो 2 पार्ट्स च बनाई हुई सी, 6 इंपॉर्टेंट टैंपल्स जिथे मोदी जी गए हैं। तो इस साल टैंपल्स बहुत न्यूज़ च रहे ने, तो एक मैच द फॉलोइंग द क्वेश्चन टैंपल्स ते बन सकता है। सो इसलिए इनू भी याद रखो, जिन्हें वो 6 टैंपल्स वाली वीडियो नहीं देखी उन्होंने भी याद, उन्होंने भी सुन के लिख के रखो, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अटल वेयो अभुदय योजना, राइट। बेसिकली एल्डरली पॉपूलेशन ਲਈ है। लास्ट डिस्कशन च ਆਪਾਂ नीति ਦੀ बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ, सीनियर केयर रिफॉर्म्स, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਐਲਡਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ 올ਡਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ। एल्डरली लोगों लिए डिफरेंट स्कीम्स जिहड़ियां है वो ये अंदर इंटीग्रेटेड ने। बेसिकली आप वो स्कीम्स बहुत सारिया पढ़ चुके जिहड़ियां ये अंदर आंदियां है। आई जस्ट ब्रीफली टेल यू अबाउट दोस। सो फर्स्ट स्कीम जिहड़ी ये अंदर है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजनस, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजनस, इस क्या है गवर्नमेंट NGOs वगैरह नूं पैसा दिंदी है ताकि वो बुढ़े लोगों की केयर कर सकन। होम्स यू नो जिवें आपां ऑर्फनेजेस टाइप्स हुंदे हैं उवें ही सीनियर्स केयर सेंटर्स, सीनियर होम्स वगैरह हुंदे हैं, वो सब ये मेनटेन करन। तो इस NGOs वगैरह नूं पैसा मिलता है टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली बेसिकली, ठीक है। सैकेंड स्कीम जिहड़ी इहदे अंदर कवर हुंदी है स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजनस, ठीक है। स्टेट एक्शन प्लान मतलब क्या है, स्टेट्स एह जे ट्रेंड केयर गिवर्स का एक पूल बनाएगी जिहड़ी कि सीनियर सिटीजनस लिए काम कर सकन, राइट। थोड़ा थोड़ा याद रखना, बहुत डिटेल च नहीं करना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना तुहानू लास्ट टाइम भी दस्सिया सी, डिसेबिलिटी हुण जिहड़े बुढ़े लोग होंगे है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ फेस कर रहे होंगे, कईयां तो चलिया नहीं जाता, कईयां नू सुनता नहीं है, कईयां नू दिखता नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ कैन बी देयर। सो उन्होंने असिस्टेंस वाले डिवाइसिस देना जिवें कि हेयरिंग एड या सोटी वगैरह इलैक्ट्रॉनिक या व्हील चेयर्स इलैक्ट्रॉनिक, ये सब उन्होंने असिस्टिव डिवाइसिस प्रोवाइड करना, दैट इज़ द टारगेट ऑफ दिस मिशन, दिस प्रोग्राम, राइट। नाउ नैक्सट हैगी है साडी एल्डरली हैल्पलाइन। अगर किसी भी बुढ़े इंसान को कोई भी दिक्कत हो रही है दे कैन जस्ट कॉल एट दिस नंबर। दिस हैल्पलाइन इज़ डेडिकेटेडली फॉर सीनियर केयर, जिमें विमेन हैल्प लई डेडिकेटेड हैल्पलाइन जगह जगह ते अपने इंडिया विच है, उस तरीके नाल एल्डरली लई बनी हुई है। दैन सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज, लास्ट टाइम भी आपने ये डिस्कस की थी लास्ट क्लास विच, ठीक है। सो यह जे स्टार्टअप्स नूं प्रमोट किया जाएगा जो इनोवेटिव सोल्यूशनस लियाणगे एल्डरली दी केयर लई, राइट। कुछ यह जे वेज जिदे तरीके जिदे थ्रू आप एल्डरली दे अगेंस्ट क्राइम, उन्हां दी हेल्थ, न्यूट्रीशन, उन्हां दी लोनलीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर सकिए, राइट। सो दैट इज़ देयर। एंड फाइनली स्पैशल ट्रेंड केयर गिवर्स का एक आप पूल बनाना है। यह जो स्पैशली ट्रेंड नर्सिज होनी चाहिए हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए हैं, जोड़े बुढ़े लोगों को हैल्प कर सकन, केयर दे सकन, राइट। मतलब हैल्प की सिर्फ ये मतलब नहीं होंदा कि तुसी उन्होंने हैल्थ केयर ही दो, ये भी बहुत जरूरी है कि उन्होंने दिमाग सही रहे, उन्होंने जी लोनलीनेस फील होंदी है या जी बहुत इशूज़ फेस करते रहे साइकोलॉजिकल इशूज़, राइट, वो सब भी सॉल्व हो सकन। तो इसलिए डेडिकेटेड ट्रेंड पर्सनाले दी सानू एक पूरी वर्कफोर्स चाहिए है, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन दिस स्कीम, राइट। सो मतलब क्या है, ये तो स्कीम जिहड़ी है अटल वेयो अभ्युदय योजना, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स ने, राइट। वही सारे आप एक एक करके डिस्कस किते हैं, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। शॉर्ट च बस याद रखो, इस NGOs वगैरह नू पैसा मिलता है, इस ट्रेंड यू नो पूल क्रिएट करना है, समझ लो
असिस्टिव डिवाइसेस मिलणगे इस च। बस ऐ कीवर्ड्स के थ्रू याद रखा करो, ये हैल्पलाइन ही है, ठीक है। इस इनोवेशन वाली स्टार्टअप्स नू सपोर्ट किया जाएगा, इस तरीके नाल बस शॉर्ट वे याद रखना है ट्रेनिंग वाले का, ठीक है। एवें आ 6 भी अगर तुसी लिखा है पेपर च, ये भी बहुत मार्क्स मिलणगे, राइट। दैट इज़ ऑल वॉट इज़ रिक्वायर्ड। कंटेंट बहुत है बट उन्होंने याद करने लिए तुसी इस तरीके नाल ही मकैनिज़म्स यूज़ करने हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस डिस्कशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you want to discuss your preparation, you need a mentor, you need full course, you need test series, we are there for you on this number. Just message us with your name and query on this number. WhatsApp कर दो या normal text message कर दो, or you will can call also, but कई बार call I won't be able to pick, कभी कभी meetings, classes and all that goes on, so इसलिए just a message and you will be given a dedicated time to talk out your issue with, ठीक है। So that is all for this discussion. Thank you so much for joining.